টেকিং ব্যাপারটা, টাইম বেশি লাগছে। কেন বেশি লাগছে বুঝতে পারছো না, কোথায় অসুবিধা হচ্ছে? মানে ওখানে যেটা দেখলাম সেটা হয় মানে আপনি যে আমাদেরকে তো একটা নোটস টাইপ মানে দেখিয়ে দিয়েছেন সলভ করার প্রসেস, এবার যখন আমি ওটা করছি তখন আমার কোনো টাইম মানে সেটা 1 মিনিট 2 মিনিট নয়, সেটা 5 মিনিট লাগছে আমার সলভ করতে। হয়তো এটাও হতে পারে যে ওটাকে আমি অ্যাভয়েড করতাম প্রিভিয়াস এক্সাম গুলোতে। তো এরকম কিছু সমস্যার পরে কি হচ্ছে, তো তোমাকে আমি কিছু প্র্যাকটিস সেট দেবো, কোনো ডিরেকশনে কিছু আর কোশ্চেন দেবো, সেগুলো সলভ করতে থাকো। তোমার যেটা মনে হয় সেটা হলো যে তোমার প্র্যাকটিসটা একটু কম হচ্ছে, বুঝেছো রিতিকা? তো প্র্যাকটিসটা একটু বাড়াতে হবে, তাহলে তোমার ওটা হয়ে যাবে। এমনি আচ্ছা, বুঝতে পারো তো যে ডিরেকশন কিভাবে বলছে, কিভাবে কি হচ্ছে? হ্যাঁ 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 মানে প্র্যাকটিসটা কম হচ্ছে। হ্যাঁ। প্র্যাকটিসটা যদি একটু ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে। স্যার আজকে আমাদের কমিউনিকেশন, স্যার বলবো? বলো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বলছি স্যার আজকে আমাদের ক্লাস ছিল কমিউনিকেশনের। তো হ্যাঁ আমি পেপার ওয়ানের যে সিলেবাস মানে কমিউনিকেশন ইউনিট 4 আছে, তো হ্যাঁ আমি কমিউনিকেশন জাস্ট একটু পড়েছিলাম বই দেখে বা আপনার দেওয়া যেটা মানে যেটা দিয়েছেন, তো হ্যাঁ, ওটাও পড়েছি, প্লাস আমি একটু বইও পড়েছি আচ্ছা আরিহান্তের বই। আচ্ছা। স্যার আমাদের কমিউনিকেশন এটা একটা ল্যাটিন মানে ওয়ার্ড, ওই কমিউনিস্ট থেকে এসেছে, যেটার মিনিং হচ্ছে কমন, কিন্তু আপনি বলেছেন যে ল্যাটিন ওয়ার্ড, ওটা মিনিং হচ্ছে fair। তো এক্সামে এলে আমরা কোনটা লিখবো? ক্লিয়ার আছে কি বলেছি আর কি লেখা আছে, একবার বলো। একটা কমিউনিকেশন। হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ কমিউনিকেশন, এই যে ওয়ার্ডটা, এটা একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড, ইজ ডিরাইভ ফ্রম ল্যাটিন ওয়ার্ড কমিউনিস্ট, হ্যাঁ which means common, মানে এটা আমি হাতের বইতে আছে। হ্যাঁ And আপনি যে নোটটা দিয়েছেন হ্যাঁ সেখানে আছে the word communication is derived in Latin, মানে এটা একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড which means to share। তো এক্সামে এলে এই কোনটাকে পারফেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার ভাববো? দুটোই কারেক্ট, মানে গেট সেটা হবে। আহ, আচ্ছা, যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা বইতে পেয়েছো সেটা হচ্ছে যে এক জায়গা হয়েছে। আচ্ছা যারা এখন আর কথা বলছে না তার কোনো প্রশ্ন একটু তারা মিউট করো, তাহলে আমি বেশি কি করে বোঝাবো বলো। जो लोग इधर हो और बात नहीं करना है अभी तो वो लोग प्लीज म्यूट कर लो। তো যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে প্রিতিকা, সেটা হলো আহ, আমি একটু ইংলিশ আর হিন্দি মিলিয়ে বলি, কারণ অনেকে বাংলা বুঝবে। তো হিন্দি ইংলিশ বোঝো? হ্যাঁ হিন্দি বুঝি, কোনো অসুবিধা নেই। तो मैं जो इधर बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ उसमें ये है कि देखो जिधर मैंने एक साथ बहुत सारे आदमी लोग हैं, उधर जाकर अगर कोई कुछ बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन है। लेकिन इधर देखो कम्युनिकेशन का तो टाइप होता है, मैंने टाइप दो से ज्यादा है लेकिन दो टाइप मेन टाइप है, जो है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। जैसे कि तुम अगर बात कर रहे हो तो तुम इधर एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ, लेकिन तुम जब क्लास लेने के लिए बात करते हो হুম लोगों से, तुम्हारे जो स्टूडेंट है वो लोग হুম तुम्हारे হুম बात सुनते हैं, तो उधर वो लोग स्टूडेंट्स हैं, হুম टीचर है। হুম ये जो হুম communication हो रहा है ये है इंटरपर्सनल। दैट मीन्स आई एम अ पर्सन, you are also a person, and if one person is communicating with another person, it is the interpersonal. হুম But in some cases, like you talk with me, बात करने के बाद आपके मन में आया कि नहीं फर्स्ट पेपर मुझे नहीं लेना है, फर्स्ट पेपर मैं कर लूंगी, अभी जो करना है कि मुझे सेकंड पेपर लेने से मेरा बातचीत निकल जाएगा या मेरा एग्जामिनेशन ठीक रहेगा। तो उसके बाद और एक बात आपके मन में आया कि नहीं ये नहीं करना है, मुझे जो करना है कि फर्स्ट पेपर भी लेना है। तो ये जो मन में सोच आ रही है, ये सोच आप मैंने बोल नहीं रहा है, तुम्हारे मन में खुद से खुद ये सोच आ रहे हैं और मन में बात कर रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मन में आप मैंने डिस्कस कर लेते हो।
तो इससे जो बात निकल के आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रापर्सनल। तो अगर कहीं पे जाके तुम देखते हो कोई डिक्शनरी देखो या कोई बुक देखो या जो भी कुछ देखो, मैं उस मैंने कहाँ पे देखो क्या देखो उसको लेकर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे तुम ये बात तुम समझ नहीं पाओगे कि अगर कहीं पे जाकर एक आदमी है जो रास्ते से, पकड़ लो कि तुम रास्ते से जा रहे हो, हम लोग रास्ते में जाते हुए भी कुछ कुछ बात मन में सोचते रह जाते हैं। तो उधर तो एक अकेला ही हो, मैंने रास्ते पर बहुत सारे आदमी है, किसी को तो आप बात नहीं कर रहे हो ना। जो मन में चल रहा है वो खुद के मन में ही बात चल रहा है, उसका कुछ डिस्कशन और किसी के साथ तो आप मैंने नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो हो रहा है ये कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कुछ हम्म। मैसेज को एक एंड से लेकर और एक एंड तक ले जाना। जैसे कि तुम रास्ते से जा रहे हो, पकड़ लो कि कोई एक एडवर्टाइजमेंट दिया है रास्ते में, कुछ जो पोस्टर या स्टैम्प ऐसे कुछ लगे रहते हैं, वो देख के तुम्हारे मन में कुछ आया कि देखो इधर ये काम हो रहा है या ऐसे काम हो रहा है, तो इसको लेके तुम सोचते रहे होते हो। तो उधर जो था उससे तुम्हारा मन में एक सोच आ गया है, अगर उसका कुछ जरूरत है तो तुम उसके बारे में सोचते हुए जाओगे और उसका जो यूज होगा तुम्हारे लाइफ के लिए उसको तुम ऐसे यूज कर लोगे। तो ये जो है ये एक एंड से जाकर और एक एंड में जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड लाइक द इंट्रोवर्सन। तो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कहीं पे जाकर कम्युनिकेशन ऐसा है कि बहुत सारे जन एक साथ हो रहे हैं, तो डेफिनेशन सही नहीं बैठेगा ना, क्योंकि अकेला एक आदमी भी कम्युनिकेशन खुद से कर रहे हैं तो वो क्या होगा तब। तो तुम्हें ये सोचना है कि टू शेयर समथिंग, दैट मीन्स टू शेयर द मैसेज। अगर मैसेज का तुम शेयर कर लेते हो तो उससे जो होता है वही कम्युनिकेशन है। अच्छा। तो कम्युनिकेशन का ठीक से जो माने रहेगा वो है कि टू शेयर समथिंग। वह एक से ज्यादा आदमी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो रहा है। ठीक है ना, जो मैंने बोला तुम समझ पाए। हम्म। আমি কি বললাম তুমি বুঝতে পেরেছো? ओके सर। আমি বললাম যে একজন हम्म। মানুষ যদি নিজের মনের ভেতরে কিছু ভাবতে থাকে তাহলে সেটাও তো একটা কমিউনিকেশন, যাকে আমরা বলি ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন। তাহলে যদি কমিউনিকেশন হলে একের বেশি মানুষের একটা জমায়েতকে আমি বলতে যাই, তাহলে সেটা কিভাবে আমি বলতে পারবো? কারণ একলা মানুষও তো একটা কমিউনিকেশন নিজের সঙ্গে নিজে কমিউনিকেশন করছে। এবার যে কমিউনিকেশন গুলো আমাদের টাইপ গুলো আমাদের নেট পরীক্ষায় দেওয়া হয় সেখানে যেরকম রয়েছে ইন্টার পার্সোনাল। ইন্টার পার্সোনাল মানে হচ্ছে মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন। ইন্ট্রাপার্সোনালে রয়েছে এটা, এবং ইন্টারপার্সোনালে বলা হচ্ছে একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। ট্রান্স বলে আরেকটি রয়েছে যেটা বলা হচ্ছে ট্রান্সপার্সোনাল। ট্রান্সপার্সোনালে আমরা অনেক সময় ভগবানের কাছে প্রে করি, মানে ভগবানকে ধরে আমরা কিছু বলতে যাচ্ছি। এবার যখন আমি ভগবানের সাথে এই ধরনের কথা বলার মতো একটা জায়গায় আছি যে ভগবান আমাদের এরকম একটা কষ্ট হয়েছে বা এই হয়েছে দুঃখ হয়েছে আমাকে একটু উপকার করো বা কিছু বড় হেল্প করো, এই যে আমরা কথাটা বলছি ভগবানকে, এটা যখন আমার উল্টো দিকে কিছু একটা অবস্থা কিন্তু আমি বলছি, এটা তো আমি নিজেকে নিজে বলছি না, আমি নিজে নিজে কাউকে বলছি। এই যে জায়গাটা এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সপার্সোনাল। এটা অনেক সময় যে আমাদের যে স্বপ্ন হয় সেই স্বপ্নের ভেতরে দেখা যায় যে আমরা কোনো সময় ভূত দেখছি, কোনো সময় ভগবান দেখছি, কোনো সময় অন্য লোককে দেখছি। এর মধ্যে যে কমিউনিকেশনের প্রসেসটা এটা হচ্ছে ট্রান্সপার্সোনাল কমিউনিকেশন। তো আমাদের কাছে টোটালি এই তিনটা কমিউনিকেশনের টাইপ নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করি, এবং নেট পরীক্ষায় এই তিনটের ভেতরে যে কোনো कम्युनिकेशन निये থাকে। देन अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कम्युनिकेशन के बारे में जो हम लोग सोचेंगे अगर कि कम्युनिकेशन क्या है और कैसे हो रहा है इसमें, तो इसमें जो बात निकल के आएगा उसमें है कि कम्युनिकेशन इज टोटली एन यूनिवर्सल प्रोसेस। लाइक if we say yes, then it is true for India, it is true for Nepal, it is true for America, it is true for all the nations, wherever it is. तो अगर कम्युनिकेशन यूनिवर्सल ना होगा तो यस का मतलब एक एक नेशन पे एक एक जैसा हो सकता है।
लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। जो ईएस इधर है वो दुनिया भर में ही ईएस है, और जो नो है वो दुनिया भर में ही नो है। कम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्टेड बट कैन नॉट बी एवर ब्रोकन डाउन। इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन को आप किसी तरह से इंटरप्ट कर सकते हो, कोई बैरियर देके उसको इंटरप्ट कर दो सकते हो। जैसे कि एक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इधर कोई क्लास लेने के लिए आए हैं, जो बात करते हुए या बात सुनते हुए अचानक से उनका नेटवर्क चला गया, तो वो अचानक से इधर से चले जाएंगे। दैट इज अ टेक्निकोलॉजिकल इशू। तो टेक्नोलॉजिकल इशू से जो कम्युनिकेशन का बैरियर हो रहा है और टेक्नोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजिकल ही अकेला नहीं है इसको बैरियर देने में, इधर बैरियर करने में और बहुत सारे कारण भी है। जैसे कि कोई कल्चर, जैसे सोच लो कि इधर जाकर हम लोग कोई एक सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी में कल्चर है, तो अगर कोई उसको कल्चर को ना मानकर कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए आए, तो हम लोगों को वो ग्राह्य नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अगर कोई बड़े आदमी जो हम लोगों से थोड़ा बड़े हैं उम्र में या एक्सपीरियंस है जो भी कुछ, उनको जाकर अचानक से तू तुकारी, या जो हम बंगाली में बोलते हैं तू तुकारी, या तू बोलने लगे, तू, तो बात अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कुछ कम्युनिकेशन का मामला है जो बैरियर से टूट रहा है। और ये जो टूट रहा है, इसको लेकर हम अगर देखें तो इसमें एक कल्चर छुपा हुआ है कि हम लोगों को सिखाया गया है कि जो अब से उम्र में बड़े हैं उन लोगों को आप करके बोलो, या जो मैंने इक्वल उम्र के हैं उन लोगों को तुम करके बोलो, और जो लोग छोटे हैं उन लोगों को तू करके बोलो। तो ये जो कल्चर है, जैसे कि हम लोग अगर जाकर, आप लोग सभी पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर बोलने जाओ कि आपने मैंने आप खुद के जो कॉलेज है, खुद के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाते, तो बात थोड़ा सुनने में कैसे लगेगा कि अरे ये तो हम लोग से छोटे हैं तो इसको आप क्यों। लेकिन अगर किसी प्रोफेसर को जाकर आप बोलो कि तू या तुम, तब ये बात भी नहीं चलेगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। इसके साथ साथ जो है उसमें है जेंडर बैरियर। जैसे कि हम लोग जब कुछ बात करते हैं, लड़के लोग किधर है उधर कुछ बात चल रहा है, अचानक से एक लड़की आ गई उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं। क्यों? इसके जो कारण है ये है जेंडर गैप। ये नहीं, ये तो लड़की है, इसके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग को कहीं से सिखाया गया है या कहीं से हम लोग ये सीख गए हैं कि नहीं, जो लड़के लोग का बात है वो जाकर हम लोग कोई लड़की को नहीं बता सकते। तो जेंडर भी एक गैप है, मास कम्युनिकेशन का भी एक गैप बन सकता है। जैसे कि रूल आ गया है कि कोई एक टीचर कुछ खराब कुछ काम कर दिए है, या कुछ, जैसे क्या इधर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से और एक पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं कोई कोई लोग, तो जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में जिनसे हम मन से जुड़े हुए हैं उनको छोड़ के और एक पार्टी में चले गए, तब वो अचानक से हम लोगों को एनिमी जैसा लगता है। हाँ, हम लोगों को तो इसमें भरोसा था, इसमें था और पॉलिटिकल पार्टी में था, अभी देखो चला गया ऐसे करके। तो वो जो है वो किधर से आया? हम मास कम्युनिकेशन से आया। क्योंकि अगर वो कौन सा पार्टी में जा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ अगर मास कम्युनिकेशन के साथ हम लोगों को पता नहीं चलता, तो हम लोगों को उसके लिए कुछ सोच भी नहीं आता होता। तो मास कम्युनिकेशन कहीं भी जाकर एक बैरियर बन सकता है। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन होता है, और कम्युनिकेशन का बैरियर लोग, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद जो होता है कि एक मैसेज हम लोग अगर देने के लिए किसी के पास जाए, तो उसमें 3 अलग-अलग सिस्टम जारी होता है। जैसे कि एनकोडर। एनकोडर का मतलब है जो मैसेज को एनकोड कर लेते हैं, जो मैसेज को एनकोड करके उसको कहीं पे भेजने के लिए कोशिश करते हैं, या जो कहीं पे मैसेज को भेज देते हैं, ये सभी लोग एनकोडर बन जाते हैं।
जैसे कि एक क्लास चल रहा है, इधर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इधर जो मैं बात बोलने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ठीक से आप लोगों के पास दे सकूँ, तो ये बात हो जाएगा एक मैसेज। ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उसका एक सिस्टम है। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ ऐसे कि लेक्चर होगा कल, कब होगा, ये हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग को बोल दिया कल होगा, तो एक मन में आ जाता है कि काल तो बोल दिया है सर ने, लेकिन ये लेक्चर जो काल होने वाला है ये कितने बजे होगा, उस टाइम मैं रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा। तो ये जो सोच आ जाता है मन में, ये जिसको लेके आते हैं वो हो जाते हैं एनकोडर। अभी मैसेज और एनकोडर तो हो गया, लेकिन ये जो मैसेज जो जा रहा है उसका एक सराउंडिंग रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो पास में साइलेंस है, ज्यादा शोर शराबा नहीं है, तो ये जो है ये है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। तो इसमें से होकर ही कुछ मैसेज जिसके पास जाना है उसके पास जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें जो आता है और एक वो उसको बोलते हैं चैनल। चैनल का मतलब जैसा है कि इधर एक मूवी कैमरा है मेरे पास, जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। अगर एक कैमरा मेरे पास अगर ना होता तो आप लोग मुझे नहीं देख सकते थे। तो ये जो मीडिया है इसको बोलते हैं चैनल। और जो मैसेज मैं आप लोगों के पास बोल रहा हूँ, वो मैसेज अगर आप ठीक से सुन पाओ, ठीक से समझ पाओ और उसका कुछ भी कर पाओ, तो आप बन जाते हो रिसीवर। तो एनकोडर से जाकर रिसीवर के पास जा रहे हैं मैसेज, एनक्रिप्टेड और एक कॉन्टेक्स्ट को छूते हुए। तो जो रिसीवर है वो रिसीवर उसको डिकोड कर लेते हैं। मैंने अगर मैं कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कर रहे हो उसको समझने की। अगर ना समझ पाते तो ये जो टोटल प्रोसेस है वो टोटली फेल हो जाता। तो इसको जो फेल नहीं हो रहा है इसका कारण है कि आप लोग उसको डिकोड कर सकते हैं। तो जो डिकोड कर सकते हैं उन लोगों को बोला जाता है डिकोडर। तो ये है टोटल प्रोसेस। अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, तो आप लोग कभी पूछ सकते हो। सर ये फिजिकल बैरियर और परसेप्चुअल बैरियर्स भी समझ में नहीं आया। पहले सबसे पहले तो फिजिकल बैरियर्स ही समझ नहीं आया। हाँ, तो फिजिकल बैरियर जैसा है कि जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं वो है फिजिकल। मतलब सोच लो कि कहीं पे आप कुछ सुनने के लिए गए हो, पकड़ लो कि एक कोई फील्ड है जिसमें कुछ फंक्शन चल रहा है। परेश सर जी आपका वीडियो ऑन कीजिएगा थोड़ा। तो वहां पे जाकर आप कोई बात सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन वहां पे पकड़ लो कि कुछ चेयर नहीं है, कहीं पे रुकने के लिए जगह नहीं है, और जो वॉलंटियर लोग हैं वो लोग आपको बोल रहे हैं जाओ जाओ इधर से भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। जैसे कि कोई पूजा देखने के लिए जाते हैं हम लोग, जब सब लोग कहते हैं ना जे जाओ जाओ इधर से जाओ इधर से जाओ इधर से जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, ऐसे करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। मैंने जिसको आप क्रॉस कर सकते हो। लेकिन परसेप्चुअल बैरियर भी और एक बैरियर बन सकता है। जैसे कि आप अगर पकड़ लेते हो कि वो आदमी जो है शायद वो आपको पहचान के भी नहीं है, लेकिन उसको देख के आपको लगा कि वो आदमी ठीक नहीं है। दिन भर आप रेलवे में हो तो बहुत सारे आदमी लोग आप लोगों के पास आते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं आपके पास, कह सकते हो कि सभी को देखकर कुछ कुछ सोच आ जाता है कि ना ये लोग अच्छा है, ये लोग उतना अच्छा नहीं है, ये लोग ऐसा है। ऐसे जो मन में जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको जाके हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। मीन्स द परसेप्शन, उसके बारे में हम लोगों को क्या परसेप्शन हुआ, तो दैट इज द परसेप्शन। तो द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द परसेप्शन इज दैट one physical thing should be in a situation to be touched। अगर किसी को आप टच नहीं कर सकते हो तो फिजिकल बैरियर में कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि
कल्चर अगर पकड़ लेते हो, कल्चर में दो चीज रहता है, एक को बोलते हैं टेंजिबल और एक को बोलते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल जो चीज होते हैं उसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि मेरा माथा पे एक टोपी है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, आपके माथे पे भी है, तो इसको मैं टच कर सकती हूँ, आप भी टच कर सकते हैं, तो बन जाता है ये एक टेंजिबल। अगर ये जो टोपी है, ये हम लोग का इंडिया में ऐसा टोपी चलता है, लेकिन अगर हम लोग अगर जाकर यूएसए में देखते हैं तो ऐसे टोपी नहीं चलेगा, उधर टोपी जो है वो थोड़ा अलग है। तो ये जो है ये भी एक कल्चरल कॉम्पोनेंट है। तो ये कल्चरल कंपोनेंट हम जो टच कर सकते हैं उसको बोल सकते हैं फिजिकल। लेकिन मन में कभी कभी आ जाता है कि जो कोल्ड वेदर अभी क्या चल रहा है, कोई अगर आपसे पूछे कि हाँ जी आप बोलो तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, तो आपके सीजन को टच कर सकोगे, उसको पकड़ के कुछ बोल सकोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकोगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ठंड का समय है। कैसे? तो ये जो है इसको हम लोग कुछ टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं। तो इसको लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं परसेप्चुअल। ज्यादातर जैसा होता है कि कहीं पे जाकर आप बात करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहां पे बहुत भीड़ है, तो बहुत धक्का धक्की है और जो है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है और कैओटिक है, तो वहां पे वहां पे जाके जो होगा उसके बाद कोई सुन ठीक से नहीं पाएगा, क्योंकि देयर इन अ कैओटिक सिचुएशन और इन प्रॉब्लम। जैसे कि कोई ट्रेन के कमरा हो, तो उसमें कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखते हो कि कोई छोटा छोटा बात लेके भी झगड़ते हैं और झगड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मन में जो एक बैरियर बन चुका है वो है परसेप्चुअल, और वहाँ पे फिजिकल बैरियर भी है। तो physical and perceptual barriers are totally different, but somehow and in some situations they can be interrupted and interconnected as well. तो हम लोगों को ये सोच लेना है कि कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, या कभी इंडिविजुअल हो भी सकता है। तो कैसे ये आ रहा है, ये टोटल सिचुएशन को देख के ही पता चलता है, और ये जो टोटल सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। समझ आया आपको? ये सब परसेप्चुअल बैरियर्स पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर कोई ले तो? पार्टिकुलर मतलब मैंने क्या बोला कि आपके रेलवे ऑफिस में आप बैठे हुए हो, उस जी टाइम जी। बाहर से कोई आदमी जिसको आप पहचान में नहीं हो, वो आपको नहीं पहचानते, आप भी उसको नहीं पहचानते, लेकिन वो आए आपके पास कुछ बात करने के लिए। तो जो आदमी आ रहा है उसको देख के आपको कुछ पता चल जाता है। जैसे यस। कोई एक लड़का आया है जो फटा हुआ जीन्स पहना है, और जो टी शर्ट है उसमें कुछ बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, कोई पिक्चर दिया गया है, तो आपको उसको लेके एक सोच आएगा। और एक लड़का आया है जिसको एक को मैंने टाई है, एक फॉर्मल ड्रेस है, तो उसको लेकर और एक सोच आएगा। और जो आप उन लोगों से जो मैंने बिहेवियर शो करोगे वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कोई एक एग्जीक्यूटिव जिसको देख के लग रहा है उससे जैसे आप बात करोगे, और जिसको देख के लगेगा कि नहीं ये कोई अब मैंने उतना अच्छा बात नहीं करता है या उतना अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ आपका जो बात करने का प्रोसेस है, जो बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये जो मामला है ये आपको कुछ सिखाया नहीं, और आप कहीं से सीखे भी नहीं, लेकिन आपका जो परसेप्शन बन गया है उन लोगों को लेकर, उससे जुड़ा होकर ऐसे ऐसे काम हो रहा है। तो आपको जो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन कुछ देगा, तो उसको पकड़ के सोचना है कि ये जो सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, ये सिचुएशन अगर मेरी जिंदगी में हो जाता है तो मैं कैसे इसको सोच सकता हूँ। जैसे कि कोई बोल रहा है, कोई मैं जैसे आपको बोला कि पूजा का टाइम है और आपको लिए कोई धक्का दे रहा है पीछे से, तो आपका जो ये बैरियर बनेगा, ये बनेगा फिजिकल बैरियर। लेकिन कोई अगर ऐसा है, कोई कोई हो जाता है ना कि इधर इंडिया में जो चलता है, हाँ ऐसे बोलो कि जय श्री राम बोलो, और मुस्लिम जो लोग हैं उन लोग को भागा दो, ऐसे ऐसे हम लोगों के इधर पर अभी बोलना चालू हो गया है। तो ये जो बात है ये हो गया है परसेप्चुअल, क्योंकि ना सभी हिंदू सही है, ना सभी मुस्लिम गलत है। क्योंकि कोई रिलीजन कभी नहीं बोल रहा है कि तुम गलत बन जाओ, कोई रिलीजन नहीं यस। बोल रहा है कि तुम अच्छा बन जाओ, कुछ भी नहीं बोलता है। रिलीजन कुछ पथ दिखाता है,
चलना तो हम लोगों के मन में है, कैसे हम लोग Yes, चलें sir. उसको आगे बना के, वो हम लोगों के मन में है। कोई इस्लाम अगर देखते हो तो हाजी मोहम्मद महसिन, इधर एक नाम आप गूगल करके देख सकते हो, तो हाजी मोहम्मद महसिन का नाम भी है। और जो है तो जो आफ्ताब है या जो भी कुछ है या जो मुंबई में हमला किए हैं, वो लोग जो है वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो जो सोच रहे हैं जो रिलीजन लेके, ये टोटली चेंज। एक आदमी जिंदगी में जो भी कमाया था वो सभी कुछ दे दिए, और एक है कि आदमी लोगों को मारने लगे। तो रिलीजन को कैसे यूज कर रहे हैं कोई, ये ही है परसेप्चुअल। और ऐसे ऐसे अगर कुछ बन जाता है और कुछ कारण से या और कुछ अटैचमेंट से, तो वो जो बनेगा वो है परसेप्चुअल। तो इसमें बैरियर कहने का मतलब ये हुआ सर कि जो मतलब अ, किसी को देख करके आप इंफॉर्मेशन लिए बिना ही उसको समझ लेते हैं, तो ये बैरियर है कहने का मतलब। हाँ, बैरियर मतलब क्या है, जो आप इंफॉर्मेशन एक एग्जीक्यूटिव को जैसे दे रहे हो, और एक जी जो हूलिगन है और जो ऐसे ऐसे करके आया है, उसको आप ऐसे नहीं दे रहे हो इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपका जो पोजीशन है वो तो इम्पार्शियल है। आपको एक शायद पकड़ लो कि कोई ऐसे कुछ काम दिया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है। कोई तो आपको सिखाया नहीं कि नहीं, जो ऐसा आया है उससे ऐसे बात करो, और जो ऐसे नहीं आया है तो उससे ऐसे बात करो, लेकिन आप कर रहे हो। तो क्योंकि वो बैरियर आ रहा है तो अपने आप वो हो रहा है। ड्यू हाँ, टू दैट बैरियर वी यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज विद देम। हाँ, और ये कहीं पे जाके एक बैरियर बन रहा है, मैंने आपको पार्शियलिटी से घेर रहा है। और पार्शियलिटी जी जी में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अगर पकड़ लो कि मैंने अगर शाहरुख का एक मूवी था, जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, नाम वो जो आलिया भट्ट के साथ था ना, एक साइकोलॉजिस्ट के, जो उसमें क्या मूवी था वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो वो एक मूवी था जिसमें दिखाया गया है कि शाहरुख, वो जाकर एक साइकोलॉजिस्ट है, वो जाकर फटा हुआ जी। जींस पहन लिए हैं और एक टी शर्ट पहन लिए हैं और आके लेक्चर दे रहे हैं। तो उसको लिए वो बोल रही है कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐसे ड्रेस करके मैं चलता हूँ, क्योंकि जो मेरे कॉमन पीपल है वो मुझसे थोड़ा अच्छी तरह से जुड़ पाए, या जो मेरा पेशेंट है वो मेरे से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए। तो जो फटा हुआ जीन्स है, उसको देख के हम लोगों को जो मन में लगता है, वो कहीं पे जाके सही भी नहीं हो सकता है। सही हो भी सकता है या सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ सोच तो बन जा रहा है। और उसको आधार बना के हम काम भी करते हैं, बात भी करते हैं, जो भी करना है तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो बात तो सही नहीं है ना। तो उसको तो कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन रहा है जो। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकुलर जो कंसिडरेशन है और जो परसेप्शन है, वो भी एक बैरियर ही कैसा ही है फॉर कम्युनिकेशन। ये सर इंटरपर्सनल बैरियर्स में जो कुछ चीज आते हैं तो कुछ तो समझ में आता है। जैसे विथड्रॉल समझ में आया, जो कई कभी हम काफी दिनों से दूर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब ये कम्युनिकेशन बैरियर रहा। हाँ, इसी तरीके से रिचुअल्स रिचुअल्स भी है, कुछ रिचुअल्स के में भी ऐसी सिचुएशन होती है। हाँ, लेकिन इसमें मुझे पास टाइम वर्ड जो है ये समझ में नहीं आया। पास टाइम मतलब है कि कहीं पे आप जा रहे हो, तो जाते हुए किसी से आप बात कर रहे हो, मैंने पकड़ लो ना, कोई मैंने बस से जा रहे हो या कोई ट्रेन से या कुछ और से, तो जाते हुए रास्ते में किसी आदमी से आप बात कर रहे हो, तो एक पास टाइम का बात हुआ। लेकिन उसमें जो कम्युनिकेशन होगा उसमें आपका घर के बात तो आप नहीं करोगे, या जो आपका जो इम्पोर्टेंट बात है वो उनसे नहीं करोगे ना। पकड़ लो कि उनसे जो बात होगा कि कुछ पॉलिटिकल या बात होगा, या ऐसा कुछ होगा जो उतना मैंने फॉर्मल नहीं है, चलता है बस ऐसे ऐसा कुछ बात आप करो। अच्छा अच्छा, वो मतलब वक्त मतलब कहीं चल रहे हैं और किसी के साथ बात कर दी है ऐसे ही, क्या हाल है, ये हाँ, पास टाइम हुआ। हाँ, हाल नहीं हुआ ऐसे भी नहीं। जैसे कि एक बस में जा रहे हो, पास आपके पास का जो सीट है उस पर कोई आदमी बैठे हुए हैं, तो वो आपको पहचानते भी नहीं है, कभी भी देखे भी नहीं है, और शायद कभी देखो भी नहीं। लेकिन आप उससे अच्छा। बात करते हैं हम्म। कि देखो मोदी जी तो ऐसा कर रहा है, या योगी जी तो ऐसा कर रहा है, या ऐसा 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 ऐसा, जो भी कुछ अरविंद जी ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं ना। तो टाइम को पास करने के लिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज द टाइम कम्युनिकेशन। टाइम को पास करने के लिए बोलता है ना, तो वही है इसमें। तो मतलब इसमें कम्युनिकेशन बैरियर किस तरीके का हुआ है इसमें, जैसे
फॉर्मेलिटी कुछ नहीं रहता ना, मैंने आप जो उनसे बात कर रहे हो जो उसमें आप कुछ सोच के तो नहीं बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई इसमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का कुछ नहीं है, बस वो पास टाइम बैरियर है। हाँ, कि सिर्फ 5 ठीक। करने के बाद वो कम्युनिकेशन को कुछ उतना मोड भी नहीं है और उसका कुछ वैल्यूएशन भी हम लोगों के लिए नहीं रहता है। हम ये बैरियर्स का मतलब ओवरऑल ये हुआ, जो हम कोई मतलब कम्युनिकेशन का कोई और तरीका नहीं होता जो फिक्स तरीका होता है, जो अपने आप वो ही हो जाता है। जैसे कोई रिचुअल्स है, तो जैसे हमें ये कोई पंडित है और हमें कोई पूजा करवा रहे हैं, तो वो रिचुअल्स उनके हिसाब से होगा, प्रोसेस, तो वो मतलब वो बैरियर्स हो गया, जो वहां पे ऐसे ही होना है। अच्छा सुनो, कम्युनिकेशन का प्रोसेस रहता है, जैसे कि हम लोग जो पूजा करते हैं उसका एक कम्युनिकेशन जी ही है वो। हम लोग देवता या जो भी है हम लोगों के सामने उसके साथ जैसा हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो उसके साथ हम कुछ बात करने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं कि हम, हाँ देखो मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, आप इसको सुलझा दो या थोड़ा सॉल्व कर दो, तो भी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज टोटली एंड यूनिवर्सल। अगर किसी चीज को यूनिवर्सल बनना है तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक वे भी रहना है। अगर सिस्टमेटिक वे ना रहे तो सिस्टमेटिक वे ना रहने के कारण से ही वो और मेरे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। लेकिन मैं जो पास टाइम के बारे में बोला है उसमें कुछ सिस्टम नहीं है। आज पार्टी से लेकर बात हो रहा है, कल जेंडर इश्यू से बात हो सकता है, कल इकोनॉमी से बात हो सकता है, या जो भी कुछ है वो बात हो सकता है, तो उसमें कुछ सिस्टम तो नहीं है। लेकिन कैसे बात करना है वो तो बात करना ही है। अगर बात करने का प्रोसेस ठीक से ना फॉलो करें तो नहीं होगा ना। और एक देखते हैं हम लोग कि लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग कुछ का यूज नहीं करते, सबका यूज नहीं होता, शब्द व्यवहार হয় না। আমরা যেটা করি, হ্যাঁ, হুম, ओ, हम लोग जब ऐसे ऐसे आवाज निकालते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पैरा लैंग्वेज। देयर इज नो वर्ड एट ऑल। लेकिन बाकी जो भी कुछ है वो सभी आ जाते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में भी दो तरह के लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर काम पे आते हैं। एक बोलते हैं हम लोग होम लैंग्वेज, और एक बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। अगर किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके, जैसे कोई ऑफिस में जाकर किसी अधिकारी को आप एक चिट्ठी दे रहे हो या मेल दे रहे हो, तो उसमें जो मैंने जो लैंग्वेज होगा वो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होगा। ठीक है, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर जो घर में बात के किसी दोस्त से या कोई रिलेटिव से बात किया जा रहा है तो वो बेसिकली द होम लैंग्वेज होगा। जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है उसको हम सभी में जाकर तो सभी में जाकर रास्ते में किसी को आप नहीं बोलोगे सर, आप बोलोगे भैया, तो है होम लैंग्वेज। वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज नहीं है। लेकिन ऑफिस में जाकर आपको सर या मैडम ही बोलना है। तो there is a difference between the structural language and the home language। तो ये था मेरा टोटल कम्युनिकेशन का एक ब्रीफ सेशन। आप लोग अगर कुछ है आप लोग স্যার স্যার আমার একটু বলার আছে স্যার। बोलो। হ্যাঁ, আমার যেটা বলার স্যার, মানে আপনি হিন্দিতে বলছেন তো এবার আমার একটু অসুবিধা, মানে বুঝি কিন্তু যখন ক্লাস হয় একটু মাঝে মাঝে অসুবিধে হচ্ছে। করে নেবে যার জন্য যাই হোক সেটা নিয়ে নয়। আহ, তো আমার যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে তো মানে বুঝছেন স্যার? হয়েছে সবটাই বলতে হচ্ছে। তোমার যদি যেখানে অসুবিধা থাকবে তুমি আমার কাছে সেইখানে কিন্তু সবসময় ফোন করতে হ্যাঁ হবে। সেটাই, সবাই, একটু হিন্দিতে প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ আমি সবাইকে বলে রেখেছি যে তোমাদের যে কোনো ধরনের ডাউট, এবং আমি যখন মক টেস্টের কোশ্চেন পেপারগুলো দিই সেখানেও তোমাদেরকে আমি লিখে দিই যে কোনো তোমার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো, বেশিরভাগ দিনই করেন। তুমি যদি আমার কাছে এসে মাঝে মধ্যে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো আমার সেটা খুব ভালো লাগবে। কারণ হুম, কোশ্চেনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা শিখি। আজকে অ্যারিস্টটলের যে শিক্ষা পদ্ধতি তুমি তো নিশ্চয়ই পড়েছো, সেখানে কিন্তু মানে তুমি কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রী, তো সেইখানে কিন্তু মানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই নলেজটা পাওয়া যায়। নলেজ কিন্তু আলটিমেটলি কোনো বই থেকে, কোনো নোট থেকে বা কোনো কিছুর থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তোমার হুম, মনে প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস করাও তখন হুম 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 হুম, ছাত্র যদি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন কিন্তু তোমার সেই ক্লাসটা নিতেও ভালো লাগে এবং তোমার ক্লাসটাও সুন্দর হয়ে ওঠে। হ্যাঁ ক্লাসের মধ্যে ছাত্রীরা হ্যাঁ, করতে তুমি তো আমাদের বলে যাচ্ছে ছাত্ররা শুনতেই না বলতেই না, তখন তোমারও ভালো লাগবে না। কিন্তু তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে পড়িয়ে যাওয়া, তুমি পড়িয়ে যাবে। যার জন্য আমার কাছে প্রত্যেকের কাছে এটা রিকোয়েস্ট যে তোমরা প্রত্যেকে আমার কাছে কিন্তু কোশ্চেন নিয়ে আসবে, এবং যত আমার কাছে ফোন কল করবে
ভিডিও কল করবে বা এনি টাইপ অফ কমিউনিকেশন তোমাদের যেটা ভালো লাগবে সেটা আমার কত পছন্দ হবে ছাত্রছাত্রীদের। তোমরা প্রত্যেকে আমার ছাত্রছাত্রী যে কদিন আমার কাছে তোমরা পড়বে হ্যাঁ আবার আমি আমার বেস্টটা তোমাদেরকে দেবো, এটা আমার দায়িত্ব। কিন্তু একটা দায়িত্ব আসতে একটু ভালো লাগে, ভালো লাগবে হুম। তখন তোমরা আমাকে প্রশ্নটা রাখবে। তুমি তো রিসেন্টলি জয়েন করেছো, ওরা ডিসেম্বর থেকে আছে, তোমার কাছে যা কিছু অসুবিধা, তোমার শিক্ষাবিজ্ঞানী হোক বা তোমার পার্সোনালি হোক, তুমি কিন্তু আমার কাছে ডাইরেক্ট নিয়ে আসবে উইদাউট এনি হেজিটেশন। আমি যদি সেখানে ব্যস্ত থাকি আমি তাহলে তোমাকে পরে ফোন করে নেবো বা তোমাকে মেসেজ করে আমি বলে দেবো। যার জন্য তুমি ওটা কখনো হেজিটেট করবে না এবং কখনো ভাববে না না আমি বলবো এটা কি মনে করবে না করবে, ওই সমস্ত করবে না। যা অসুবিধা যা সমস্যা ডাইরেক্ট বলবে, সবসময় সবসময় তোমাদের সাথে আমি রয়েছি। কিন্তু তোমাদের কাছ থেকেও একটু আগ্রহটা আমি আশা করি, সেই আগ্রহ তুমি সবসময় আসবে তুমি। আর কিছু আছে কি প্রশ্ন কারো? কারণ 1 মিনিট বাকি আছে। স্যার কনটেক্সট কমিউনিকেশন প্রসেসের সময় বুঝতে পারছিলাম সেই সময় কেউ মিউট ভাবজন করেনি। ওই যে কমিউনিকেশন প্রসেস হ্যাঁ এনকোডিং আর ওই মেসেজ চ্যানেল কনটেক্সট হ্যাঁ রিসিভার, এটা বলছিলেন শুনছিলাম। আমাদের ক্লাসে হচ্ছে ডিস্টার্ব হচ্ছে, সবাই হ্যাঁ, আমি মানে একবার বলে দিচ্ছি, মিউটটা করে না, বলে দিচ্ছি। মিউটটা করে না বলে স্যার বুঝতে পারি, এটা বলে দিন স্যার শুনে নিই। স্যার শুনে নাও। সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা মানে যে কথাটা বলছে সে হচ্ছে এনকোডার, যে মাধ্যমে কথাটা কারোর কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সেটা হচ্ছে তার কন্টেক্ট বা তার যে টোটাল এনভায়রনমেন্ট, যে মাধ্যমটার মাধ্যমে বাহিত হয়ে সেই কথাটা যাচ্ছে বা ভিডিওটা যাচ্ছে। যেমন আমার সামনে এই ক্যামেরাটা, এটা হচ্ছে তার চ্যানেল। আর যার কাছে গিয়ে সেই খবরটা পৌঁছচ্ছে, যে সেই কথাটা বুঝতে পারছে বা সেখানের অর্থটাও মানে নিজের মনের মধ্যে করতে পারছে, সে হচ্ছে তার ডিকোডার বা তাকে বলা হয় রিসিভার। বেশিরভাগ কিছু প্রশ্ন আছে তোমার, তাড়াতাড়ি করো, টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্যার কনটেক্সটটা একটু বলুন, স্যার কনটেক্সট। তুমি একটা ফোন করে নাও সুভাষ, তোমার কিছু আচ্ছা ওকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি বলো, জলদি ঠিক আছে স্যার। বলো বলো, তুমি কি জিজ্ঞেস করতে বললাম ও তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আমি হ্যাঁ স্যার ওই যে ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স আর পারসেপচুয়াল ব্যারিয়ার্স মানে এটা মানে যেটা আপনি বললেন মানে হিন্দিতে আমি এটা বুঝলাম, একটু মানে জাস্ট কনফার্ম করে নিচ্ছি আপনার যে স্যার ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স মানে আপনি যেটা বললেন যে ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স মানে একটা মন্দিরে হয়তো মানে ফিজিক্যাল মানে যেটা টাচ করা যায়, ফিজিক্যাল। আচ্ছা আর ফিজিক্যাল রিসোর্স তো হ্যাঁ 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 ফিজিক্যাল